Hello everyone, good morning to all of you. Morning Amit. So how's everyone doing today? All good? Then Thomas, good morning. Vivek, Sanu, Akash, Aniket, Kas, Robin, Surinder, Amit, all great, that's good. Sorry for the delays of the day. आज class थोड़ा सा late शुरू हुई है. We're sorry about that. But rest of all, how are all of you doing? Studies all going good, in sync? Morning Vijay, Chandan, Sarita. Do share the session. Session को share कर देना है as much as possible. Especially all even if we are late, so और ज़्यादा chances हैं कि you must share the session. Hello Amrinder, Vyas, Angel, Tanveer, Vik, Simran. Hello. So are all of you going in sync with the studies? All going good with the current going on and the static section? जैसे मैंने बोला था static section साथ साथ करना है, तो वो sync में चल रहा है या नहीं? Because morning and well, looks beautiful and energetic, I must say. Satvir, okay. So आज के session में again we have a few current affairs for those who are new on the class. First half में हम current affairs पढ़ेंगे and the second half में हम लोग थोड़ा static पे देखेंगे, that is CGL questions. Now CGL questions जो हम करते हैं previous year papers करते हैं, उनके अंदर keep one thing in mind when you are seeing the set कि किस तरह से क्वेश्चंस पुराने से रिलेटेड भी आते हैं और किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो सेम सेट के अंदर भी कई बार लिंक्ड पूछ लिए जाते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टैटिक के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप एनालाइज करें कि कैसा पेपर बन रहा है. ठीक है, एनालिसिस इज एज मच इम्पोर्टेंट. सो कीप एनालाइजिंग द पेपर जब हम लास्ट ईयर पेपर करते हैं. Okay, so with that, let's begin the current affairs. I guess a few of us have joined. Rest share up the session. Session को share करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे we get a more amount of crowd. And all of you must be active now. When is the World Immunization Week celebrated? या विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? When is the World Immunization Week observed? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है या विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड? तनवीर, आर, Anjar, Rahul, Satvir, Giddi, 24 to 30 April. Yes, it is a fixed date, last week of April. So all of those who are going with the last week, that is right, April के last week में World Immunization Week celebrate किया जाता है to spread awareness about immunization. Immunization के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए World Immunization Week celebrate किया जाता है. इस बार का थीम, yes, इस बार का थीम था Vaccines Work for All. Next question, where was India's first mobile virology diagnostics and research laboratory inaugurated? या भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? India's first mobile virology diagnostics and research laboratory. Yes, इस बार का थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल. रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो किसने लॉन्च करी है मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी एंड कहां पर लॉन्च की गई है? हैदराबाद. राहुल, अमित, सुभाजीत, अंजर, कुलदीप, अश्वनी, देवेंदु,
Rahul, Soni, Aniket. Okay, so we have a few answers over here with Hyderabad. Rajiv says Mumbai. Vijay, okay, so Hyderabad और Mumbai के बीच में confusion as I see. The right answer for this is going to be Hyderabad. DRDO ने लॉन्च करी है. पहली बात, ये जो मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, ये DRDO ने लॉन्च करी है एंड इट इज अ मूवेबल लेबोरेटरी एंड जितनी जल्दी हो सके यानी ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसे तैयार किया गया है विद ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एक लेबोरेटरी के लिए, उसके क्लीनलीनेस के लिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं इस लेबोरेटरी में एंड इट इज मोबाइल यानी कि इसे मूव किया जा सकता है. करंटली ये हैदराबाद में डिप्लॉयड है. So third question now, which state celebrates the Kongjom Day on April 23rd या 23 अप्रैल को खोंजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? Which state celebrates the Kongjom Day on April 23 या 23 अप्रैल को खोंजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? As Defense Minister Rajnath Singh inaugurated. Ashwani, Hitesh, Amit, Kiran, Neeraj. Amrinder, Ria. Okay, so we have a few answers about Assam and Manipur के बीच में confusion. The right answer is Manipur. खोंजोम डे जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है. किस लिए मनाया जाता है? On the celebration या on the occasion of Anglo-Manipur War. Anglo-Manipur War के को मार्क करते हुए 27th और 23rd ऑफ अप्रैल खोंजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंग्लो मणिपुर वॉर किस में मतलब फाइनली विक्ट्री किसकी हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया की विक्ट्री हुई थी उसमें. अमन, आज की क्लास 11:45 पे शुरू हुई थी या ब्रिटिश सोल्जर्स एंड मणिपुर आर्मी, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स वर द विनर्स देयर. Next, which is the first state to have in-house facility of virtual courts या virtual court को in-house सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state to have in-house facility of virtual courts? (1892) war, Devendu Sarfraz, that's right. 1892 Anglo-Manipur war. विशाल, there were certain discrepancies जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिले करना पड़ा. Okay, so किरण, सतवीर, नित्यानंद, विशाल, कटिंग एज. पहला राज्य जिसने इन हाउस सुविधा वाला वर्चुअल कोर्ट बनाया है, which is the first state to have in-house facility of virtual courts. अमन, कर्म, मनीष, आरती, सरफराज, मुकेश. ओके, सो उत्तर प्रदेश आंसर आ रहा है मेजरली, दैट इज राइट. उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जिसने वर्चुअल कोर्ट्स बनाए हैं. अहमदाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज वन ऑफ दोज. तो उसके अंदर ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी डन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट की वो कंडक्ट की जाएंगी. विदाउट इंटरनेट टू दैट कैन बी डन. दैट इज हाउ दे हैव पुट अप द फैसिलिटी. Which city would host the 2022 World Games? Virtual. कौन सा शहर 2022 वर्ल्ड गेम्स होस्ट करेगा? डोंट गो ऑन द हिंदी साइड, हिंदी में क्वेश्चन पुराना वाला है. Which city would host the 2022 World Games? Now World Games जो थे ये 2021 में होने वाले थे, लेकिन since टोक्यो ओलंपिक्स जो थे ओलंपिक्स जो थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया 2021 में, तो इसी वजह से वर्ल्ड गेम्स को 2022 में शिफ्ट कर दिया.
एंड रिसेंटली नया लोगो लॉन्च किया गया था। सीमा, अनिकेत, राहुल, अमर, नेहा, मनीष, शिवाजीत, कहां पर है ये? या एरर इन ट्रांसलेशन, ये पुराना क्वेश्चन ही है हिंदी में। Okay, so we have a few answers for Birmingham. That is right. Birmingham, Alabama in United States. वहां पे World Games 2022 ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। Recently नया लोगो लॉन्च किया गया है। इससे पहले 2021 में होने वाले थे, लेकिन सिंस टोक्यो ओलंपिक शिफ्ट हुए हैं तो वर्ल्ड गेम्स को भी शिफ्ट कर दिया। राइट, नाउ Birmingham कहाँ है? It is in Alabama in United States. Next question. Who has launched e-कार्यालय ऐप फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स, या फाइलों की आवाजाही के लिए, या ई-कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? Yeah, I have no I don't have any problem in reading out the options. I'll do that, not an issue. So, e-कार्यालय app for movement of files has been launched by whom? या फाइलों के लेन देन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, CISF और CRPF। नेहा, इशफाक, विशाल, देवेंदु, शिवाजीत, सरफराज, किरण, मनीष, सौरभ। 2020 को किस तरह से मना रहा है CISF? मोना, आरती। ओके, सो आंसर फॉर दिस CISF, दैट इज राइट। ई कार्यालय ऐप CISF ने लॉन्च किया है, दैट इज राइट। CISF ने 2020 को किस तरह से सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया था इन जनवरी? अमित, ललित, अमरेंद्र। 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, लेकिन CISF ने भी अनाउंस किया था। CISF कैसे सेलिब्रेट कर रहा है 2020 को? सरोज, अमरिंदर। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स का पार्ट है ये, दैट्स राइट। एंड वेल, फॉर I guess there's no answer over here. CISF is going to celebrate, CISF ने अनाउंसमेंट किया है कि 2020 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज ईयर ऑफ मोबिलिटी। Year of mobility with CISF celebrating Surya, that is right, cutting edge, right? Now, प्राकृति, PRACRITI, ये एक एक्रोनिम है, is a mobile friendly dashboard for COVID-19 cases prediction in India. Who has developed it? प्राकृति भारत में कोविड-19 मामलों की भविष्यवाणी के लिए एक मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड है। इसे किसने विकसित किया है? यस, 200th बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, इसलिए WHO इसे नर्स एंड मिडवाइफ का ईयर के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहा है। यस सूर्य, आई सॉ इट, आई हैड सीन द आंसर। प्राकृति मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड है फॉर कोविड-19 केसेस प्रेडिक्शन इन इंडिया। ये किसने बनाया है? गौरव, मोना, सुभाजीत, राहुल, विशाल, मनीष, अमन, अश्वनी, राजीव, Amit. Okay, so we have a few answers for IIT Delhi. That is right. Surya, Mona, that's right. IIT Delhi ने लॉन्च किया है मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड प्राकृति. Now, what does प्राकृति stand for? प्राकृति के बारे में इतने बता देते हैं. फ्रेंडली डैशबोर्ड है, दैट मीन्स ये बेसिकली प्रिडिक्ट करता है आगे के 3 हफ्तों के लिए. 1 हफ्ते का डेटा लेके आगे के 3 हफ्तों के लिए प्रिडिक्शन करता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा स्टेट कितना डेंजर में है या वहां पे कितने ज्यादा चांसेस हैं केसेस बढ़ने के. सो 3 वीक्स के आगे तक के लिए प्रोडिक्शन करता है. एवरी वीक अपडेट होगा एंड ये बेसिकली ये बताता है कि कहां पे केसेस ज्यादा बढ़ने वाले हैं. ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द फुल फॉर्म ऑफ प्रकृति, इट इज प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट. PR यानी प्रिडिक्शन एंड A फॉर असेसमेंट ऑफ
कोरोना, CR यानी कोरोना, infections and transmission in India. So Surya has also written it. For those who could not keep a follow-up, Surya has given in comments prediction and assessment of corona infections and transmission in India. और ये IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने बनाया है. Who has tied up with Paytm to launch Recharge Sathi program या Recharge Sathi कार्यक्रम शुरू करने के लिए Paytm के साथ किसने समझौता किया है? रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए पेटीएम के साथ किसने समझौता किया है या हु हैज टाइड अप विद पेटीएम टू लॉन्च रिचार्ज साथी प्रोग्राम? क्विक, मनीष, गौरव, सुभाजीत, किरण, सोनी, नेहा, Robin, Neat, Neha. Okay, so we have a few answers for option A, Vodafone Idea. That is right. जो option A के साथ गए हैं Vodafone Idea, that is right. Vodafone Idea ने रिचार्ज साथी प्रोग्राम शुरू किया है पेटीएम के साथ. ये किसके लिए है? For all the workers जिनका काम खराब हो गया है या because of shops are not being open as much या मार्केट इतना ओपन नहीं हुआ है तो they have become kind of income रुक गई है. So उसके लिए रिचार्ज साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर रजिस्टर करना है उन्हें और उसके बाद वो वोडाफोन आइडिया के जो रिचार्जेस है वो करा सकते हैं, दूसरे यूजर्स के लिए के रिचार्जेस करा सकते हैं और उसके साथ उन्हें कार्ड भी मिलेगा. जैसे गूगल पे पे हमें मिलता है स्क्रैच कार्ड, ऐसे स्क्रैच कार्ड मिलेंगे टू दोस्त जितनी ज्यादा रिचार्ज कराएंगे उतना ज्यादा कार्ड्स मिलेंगे फॉर फर्दर इनकम. सो एस्टिमेशन है कि कुछ 5,000 रुपए तो आराम से बना लेंगे एक्स्ट्रा. It is an approximation, Surya, कि 5,000 rupees approximately they'll get an extra income. Now, which country has abolished flogging as a form of punishment? या किस देश ने सजा के रूप में फ्लॉगिंग को समाप्त कर दिया है? Which country has abolished flogging as a form of punishment? अमर, गौरव, मन, सरता, कटिंग एज, सतवीर, आकाश, जल्दी. किस देश ने सजा के रूप में फ्लॉगिंग को समाप्त कर दिया? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉगिंग? फ्लॉगिंग का मतलब क्या है? पुनीत, सरिता, Monu, Amrendra, Pranjal, Anuruddh. Okay, so we have a few answers going with option C, Saudi Arabia. That is right. Recently, flogging as a form of punishment has been abolished by Saudi Arabia. Flogging है क्या? What do you mean by flogging? Flogging यानी जो when you beat with a hunter, एक hunter से या किसी rope से मारना as a form of punishment is known as flogging. और ये कुछ कंट्रीज में अभी भी है, लाइक इन ईरान इट इज देयर, सऊदी अरेबिया में था, बट रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि फ्लॉगिंग विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और वहां के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है. इस फ्लॉगिंग इज बेसिकली हंटर से मारना एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, लैश से, हंटर से. यस, कोड़े मारना हिंदी में कह सकते हो, कोड़े मारना. नाउ इन विच स्टेट इज द मदुरई चिथिराई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? या मदुरई चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? या बेसिकली इन पब्लिक में भी किया जाता था. दिस वाज लाइक फॉर माइनर ऑफेंस, छोटा ऑफेंस भी है तो उसके लिए भी पब्लिक बीटिंग्स वर देयर. यस, हंटर बीटिंग्स, मोना, दैट्स राइट, हंटर बीटिंग्स. या पब्लिक में ऐसा क्रिएट किया जाता था सिचुएशन, तो उसके लिए या जैसे ओल्ड मूवीज में देखते थे, बिल्कुल वैसे. तो मदुरई चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? या इन विच स्टेट इज मदुरई चिथिराई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सरफराज, तपस्वनी, ललित, गौरव, चंदन, सरफराज, रोशन, अमन.
Yakub. Okay, so Amrinder, we have a few answers for Tamil Nadu. That is right. Tamil Nadu के अंदर मदुरई चितुरई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल के अंदर द रियल लाइफ मतलब मैरिज रिलाइफ किया जाता है ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस मीनाक्षी. मीनाक्षी और लॉर्ड शिवा और गॉडेस मीनाक्षी की मैरिज एक तरह से कराई जाती है इस फेस्टिवल में एंड इट शोज मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कास्ट डिफरेंसेस ना हो या सारे कास्ट एक साथ हैं उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है. ये अप्रैल मंथ में यूजुअली किया जाता है, अप्रैल मई इन दी एंड, लेकिन इस बार ये पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है सेलिब्रेशन को. Now, which industry has been declared as a public utility service by Union Government for 6 months till 21 October? इस उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है. Which industry has been declared as a public utility service by Union Government for 6 months till 21st October? Yeah, you can say intercaste marriage definitely. Because वहां पे माना जाता है कि Lord Shiva is the one who is worshipped by lower caste and Meenakshi, goddess Meenakshi is of upper caste. Okay, so सुभाजीत, विशाल, मनीष, सरफराज, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये काम हुआ है? सरिता, अजय, अमन, मोनू. ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स. जल्दी आंसर करो और साथ में कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से ये हुआ है. विच एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड जिसकी वजह से पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर इंक्लूड कर दिया. Yes, they can't go on strike. अनिकेत बिल्कुल सही. एंड जो एक्ट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया है फॉर द कमिंग 6 मंथ्स, दैट इज 21 अक्टूबर तक के लिए. और इससे क्या होता है कि कोई भी बैंकिंग पर्सनल जो वहां पे ड्यूटी कर रहा है, बैंक में वर्क कर रहा है, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं. दे आर नॉट सपोज टू गो अलाउड टू गो ऑन स्ट्राइक. Yes, between this period no strikes will happen. They will work as a government industry. ये बेसिकली लाया इसलिए गया था कि इंडस्ट्रीज के अंदर कभी गवर्नमेंट को वापस कंट्रोल लेना हो तो गवर्नमेंट कभी भी इस एक्ट को यूज करके कंट्रोल कर सकती है. सो प्राइवेट को कंप्लीटली होल्ड नहीं देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, विच इज बाय द नेम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? Theme of World Immunization Week. So Rahul has the name of Union Minister of Labour, Santosh Gangwar. Now theme of World Immunization Week जल्दी से बता दो, इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट में भी डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस हो गया था वैसे ये. Rendra, Aman, Vishal. Okay, so majorly all going with option D. Vaccines work for all. That is right. Vaccines work for all इस बार का थीम था एंड ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हमेशा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है. So dates you all people are aware of then. Now before we move forward, अब static पे आएंगे. उससे पहले for those new viewers, Instagram and Telegram ID, Facebook page for all updates on my videos, you can follow me on Instagram. Recent वीडियो भी अपलोड की गई है मेरे चैनल पे, so उसका लिंक भी Instagram पे ही मिलेगा. एंड फर्दर जो भी वीडियोस आएंगी उनका लिंक भी वहीं मिलेगा. कमिंग टू द क्वेश्चन, CGL का इस बार के क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द CGL क्वेश्चंस फॉर दिस टर्म. 4th मार्च वाला पेपर है ये. आई टेल यू 4th मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये. Question 1. King Harshvardhana ascended the throne of Thaneshwar and Kannauj on death of his brother whom? राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई जिनका नाम मतलब किस भाई की मृत्यु पर
थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी? Yes, India is the third biggest military spender and fourth strongest army in the world. Strength के forms में fourth strongest है. नेशनल इंटरनेशनल डेज मंथली देती हूँ विकास, वैसे मैं ये डेज एंड डेट्स की जो पीएनजी फॉर्म है वो मंथ के हिसाब से इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड होती रहती है. सो किंग हर्षवर्धना के भाई कौन थे जिनकी डेथ पे उन्होंने थ्रोन संभाला था? ऑल ऑफ यू गोइंग विद राज्यवर्धन, दैट इज राइट. राज्यवर्धन वाज द किंग. हिज younger brother Harshvardhana then took over as the king after the death. Now, which of the following is not a folk dance belonging to the Union Territory of Jammu and Kashmir? This was a related question. Jammu and Kashmir से question we were definitely expecting. सीजीएल में जब पेपर आया था तो सीजीएल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था और सीडीएस के अंदर लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था और सीजीएल के अंदर डांस का क्वेश्चन आया था. तो सीजीएल के अंदर ये पूछा है फोक डांस, सीडीएस के अंदर लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, सिमिलर फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेजेस का. Rajendra Instagram is by the name Miss_Ashima Shukla. Rupesh Jain, Rajendra Jangir. Okay, so we have a few answers of Dangi. Option D, that is right. Dangi is not the folk dance of Jammu and Kashmir. ये हिमाचल प्रदेश का डांस है. धुमल, हफीजा एंड रौफ ये तीनों जम्मू कश्मीर के डांस हैं एंड डांगी इज द डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. Yes. Now, private ownership of production is a feature of which economy? Of the means. Okay, so private ownership of the means of production is a feature of which economy? या किस उत्पादन की निजी स्वामित्व एक किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये कल डिस्कस हुआ था कि अगर इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप है तो वो किस तरह की इकोनॉमी होगी. कौन सी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है? कल ही बताया है, कल के जो सीजीएल पेपर है उसके अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन आया था एंड कल ही डिस्कस करी थी ये चारों इकोनॉमीज. राहुल, सोनी, मनीष, Vishal, Jangir. Okay, so we have a few answers with option A, some with option C, some with option B. Well, private ownership अगर है इकोनॉमी में तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है. कल ही डिफरेंस बताया था. सोशलिस्ट अगर इकोनॉमी है तो उसके अंदर गवर्नमेंट ओनरशिप है, सारी जो वर्किंग है वो सारा गवर्नमेंट के अंडर है. कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट ओनरशिप होता है प्रोडक्शन का और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती है, टैक्सेस बना सकती है, वेरियस रेगुलेशंस कर सकती है और प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड होती है, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वर्क साइमल्टेनियसली. तो वो मिक्स्ड या ड्यूअल होता है जो इंडिया है. सोशलिस्ट जब गवर्नमेंट ओनरशिप हो कंप्लीटली और कैपिटलिस्ट जब प्राइवेट ओनरशिप हो कंप्लीटली. इसका आंसर कैपिटलिस्ट है. नाउ द गोल गुंबज ऑफ which place is the mausoleum of Muhammad Adil Shah? किस शहर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? या गोल गुंबज ऑफ which place is the mausoleum of Muhammad Adil Shah? ड्यूअल अनिकेत, ड्यूअल उसी तरह से है जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी दोनों कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों वर्क कर रहे हैं साथ में, तो मिक्स्ड एंड ड्यूअल इज द सेम. अमरेंद्र, अनिकेत,
कहां पर है? अगर किसी को पता है गोल गुम्बज कहाँ है तो दैट डायरेक्टली लीड्स यू टू द आंसर. Sonia, Amrendra. Okay, so we have a few answers over here. Dual is the other name of mixed economy. जहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. किस सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज्यादा है, किसी सेक्टर में प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा है. ओके, सो गोल गुम्बज बीजापुर में है. सो गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर इज द मिसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह. Now, who was the president of World Bank Group as of January 2020 या जनवरी 2020 तक में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? अभी भी वही हैं. इट इज द सेम पर्सन. या स्कूल बुक एनसीईआरटी के अंदर है ये गोल गुम्बज के बारे में. प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? अर्शिता, जहांगीर, राजेंद्र. मांशु, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, प्राइवेट ओनरशिप को कंप्लीट नहीं होने देती है. उसके अंदर ये होता है व्हेन इट कम्स टू ड्यूअल या मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके अंदर ये होता है कि जो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो प्राइवेट प्रोडक्शन है, वो उसके अंदर वैरायटी मिले लोगों को, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं होता है. दैट मीन्स कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन हो. वो गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, प्राइवेट से सर्विस लेना चाहते हैं, वो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को खुला हाथ नहीं है. दे कैन ओनली वर्क अंडर द रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट. उन्हें गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा. सो इट इज काइंड ऑफ नॉट फ्री हैंड बट दे कैन वर्क. सरिता, सोनी, Suji, Surajit, Sandeep, Ankur. Okay, so President of World Bank, all of you going with option A, David Malpass. That is right. The current President of World Bank is David Malpass. The 14th Dalai Lama resides in which place? या 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? फोर्टीन्थ दलाई लामा रिसाइड्स इन विच प्लेस या 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? Manish, you're most welcome to the session. अर्शिता, मांशु, अमन, जल्दी. 14th दलाई लामा कहाँ रहते हैं? Okay, so answer for this question, it goes with Dharmshala, option B. The 14th Dalai Lama resides in Dharmshala. Yeah, so easy for UPSC students. Who among the following is an Indian Olympic archer and Padma Shri winner? निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्म श्री विजेता है? Who among the following was the winner of Padma Shri as well as an Olympic archer? इनमें से कौन है जो ओलंपिक आर्चर है और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है? सज्जन, थोड़ा सा ऑल्टर कर दे तो सही रहता. सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक ज्यादा सूटेबल सेंटेंस होता. Deepak, I didn't get the sentence. Okay, answer for this question, Limbaram, option D. Limbaram is an Olympic archer. उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिला है. Now, the Birja temple, the Rajarani temple and Samaleshwari temple are all located in which state? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित हैं? धर्मेंद्र, राजेंद्र, साजन. ओके, जल्दी. बिरजा टेम्पल, राजरानी टेम्पल एंड समलेश्वरी टेम्पल, ये तीनों किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज बिरजा टेम्पल, राजरानी टेम्पल एंड समलेश्वर टेम्पल? अमन, मुकेश, मदन, साजन.
Aniket, okay, so we have a few answers. Most of you going with Assam and a few with Odisha. Amrinder, Manish, that is right. Odisha is the right answer. Birja Temple, Rajarani Temple और Samaleshwari Temple तीनों ओडिशा में है. ओडिशा इतना न्यूज में रहा है. So I suggest all of you, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो चाहे एसएससी एस्पिरेंट्स हो, ओडिशा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस सारे देखने हैं. ओडिशा ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, वो सारी स्कीम्स एक बार विजिट करनी है. और ओडिशा की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फोक डांस है, कल्चरल कोई इवेंट है, तो वो सारी चीजें देखनी है, बिकॉज ओडिशा इज वन ऑफ दो स्टेट्स जो बहुत न्यूज में रहा है. नाउ what किस तरह का एक्सपेंशन है? what expansion makes the Eiffel Tower taller during summers? किस विस्तार से की वजह से गर्मियों के दौरान आईफल टावर लंबा हो जाता है? due to what kind of expansion the Eiffel Tower becomes taller during summers? किस तरह के विस्तार की वजह से गर्मियों के दौरान आईफल टावर लंबा हो जाता है? Mo Pratibha is one of them. Sajan, yes. संदीप, एनवायरनमेंट के लिए जब साइंस सेगमेंट शुरू होगा, जब साइंस का थोड़ा डिटेल सेशन शुरू होंगे, उसके अंदर विल कवर अप द एनवायरमेंटल सेक्शन इन बेटर पार्ट, राइट? सो आईफिल टावर किस वजह से लंबा हो जाता है गर्मियों में? ओम प्रकाश, विनोद, मनीष, ये वैसे एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, किसी को साइंस नहीं भी आती है तो भी पता चल जाएगा उसे आंसर. मांशु, मन्नत, संदीप, थर्मल एक्सपेंशन. Yeah, Surya, I understand it is very tough due to the distraction, but you should not leave your schedule. Schedule नहीं तोड़ना है. The cycle of your studies must go on. थोड़ा सा lightly, but ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. Stability is necessary. Okay, answers are going for thermal expansion. That is right. Thermal यानी कि related to heat. जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि समर्स के दौरान होता है ये एक्सपेंशन, तो थर्मल जो है, थर्मल मीन्स हीट. सो गर्मियों में गर्मी ही होगी, इसी वजह से थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आईफिल टावर बिकम्स टॉलर ड्यूरिंग समर्स. ग्रेविटेशनल, केमिकल, ग्रेडियंट, ये सारे एक यूनिवर्सल हैं, तो उनसे उनका सीजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यस, ये 10th क्लास की आई थिंक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि whenever there is a bridge या रेलवे ट्रैक्स लगाए जाते हैं, तो अगर सर्दियों में रेलवे ट्रैक्स लगाए गए हैं तो गैप थोड़ा ज्यादा छोड़ते हैं कि अगर एक्सपेंशन हो जाए तो उसके बाद भी जो मीटिंग पॉइंट है वो सही रहे. तो ये रेलवे ट्रैक्स में भी सेम रूल है. निशांत, इट इज मिस आशिमा शुक्ला. Now the major component of modern Olympic gold medals is what? या आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? The major component of modern Olympic gold medals. दीपक, नया नहीं तो पुराना रिवाइज करते रहो, बिकॉज यू नीड टू ओवरकम दिस फियर. बिकॉज जब भी ये ओवर होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, यू विल रिक्वायर सर्टेन नॉलेज. एंड जीएस एंड जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वो भी आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो जीएस, करंट अफेयर्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप जितनी अवेयरनेस होती है उतना अच्छा रहेगा, चाहे आप अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं. नाउ मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल्स. गोल्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी. ब्रॉन्ज तो वैसे ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है कि ब्रॉन्ज नहीं होगा. ओके, ओनली ऑप्शन डी. वेल, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिल्वर, ऑप्शन सी. गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल के अंदर कुछ 92% सिल्वर होता है. गोल्ड का बस ये रेगुलेशन है कि गोल्ड मेडल के अंदर 6 ग्राम ऑफ गोल्ड शुड बी देयर, बट 92% ऑफ द मेडल इज मेड अप ऑफ सिल्वर, ऑप्शन सी. 92.5% सिल्वर होता है उसमें. यस, 90 to 92, बेसिकली 92.5 और समथिंग इज द एवरेज वन दैट कम्स.
6 ग्राम गोल्ड होता है। अगर ये पूछते हैं कितना गोल्ड होता है तो 6 ग्राम गोल्ड होता है एंड मेजर कंपोनेंट सिल्वर होता है। Now, which lake in Gujarat was an artificial reservoir built during the rule of Mauryas? या गुजरात में किस झील के एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासक के दौरान बनाया गया था? Which lake in Gujarat was an artificial reservoir built during the rule of Mauryas? अर्शिता, 10th बोर्ड्स के लिए we cannot say as of now because I don't think any checking and stuff is going on. अभी कुछ सब कुछ रुका हुआ है. This all work is stopped for a while. So धीरे धीरे जब things are going to be loosened up for at least domestic purposes, तब फिर these things will begin checking या examinations तब शुरू होंगे. सौरभ, संदीप, Raj, okay. So we have a few answers going with Sudarshan, that is right, option C. Sudarshan Lake है गुजरात में, which is an artificial reservoir जो basically agricultural purposes की वजह से बनाया गया था, agriculture increase करने के लिए बनाया गया था. Now, Article 17 of the Constitution of India deals with abolition of what? भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? बहुत न्यूज में रहे हैं ये आर्टिकल 17 तो बहुत ज्यादा ही. विनोद, कमल, प्रवीण, कौन सा आर्टिकल 17 किसके एबॉलिशन से डील करता है या भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? दीपक, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. करंटली अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने रेगुलेशन दिया है फॉर जून जुलाई, बट इट मे कम टिल लेटर ऑफ द ईयर. या इजी क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है. नो टचिंग, दैट इज राइट. अनटचेबिलिटी से कंसर्न्ड है आर्टिकल 17. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. What was the capital of Magda before the 4th century BCE? 4th शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? अनटचेबिलिटी वॉज वेरी प्रेवलेंट एट द टाइम. उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया था अनटचेबिलिटी का. सो उसे रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल देना पड़ा. दैट वाज आर्टिकल 17. आर्टिकल 15 अलग है मनीष. राज्याभिषेक, ऋषभ, ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र. Okay, so some are going with Patliputra, some are going with Rajagaha. The answer of this is option A. 4th century से पहले राजगढ़ कैपिटल थी मगध की और 4th सेंचुरी के बाद पाटलिपुत्र हो गई. तो पाटलिपुत्र 4th सेंचुरी के बाद थी. So it was after 4th century. Before 4th century, Rajagaha was the capital of Magad. Now, xerothalama is caused due to deficiency of which vitamin? xerothalama किस विटामिन की कमी के कारण होता है? xerothalama is caused due to deficiency of which vitamin? या xerothalama किस विटामिन की कमी के कारण होता है? Yeah, you never know, you might get that as well. या क्या पता कुछ साल बाद कोरोना वायरस पे ही अलग से वीडियो मिले. ऋषभ, द लिंक विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. वैसे वो मेरे ही नाम से है चैनल, but still the link would be available on Instagram if you still can't find it. Payal, Pavan, formation of tears, vitamin A, Pavan, okay, Sandeep, Payal, Rohit. Okay, so we have answers for option D, vitamin A, that is right, affects eye. Night blindness जो हम normally जानते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो सही है. नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो xerothalama की फर्स्ट स्टेज है या इनिशियल स्टेज है.
तो टीयर फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, फिर व्हाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। तो इट इज वन ऑफ द इनिशियल फेजेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज द इनिशियल फेज ऑफ जीरोथैलेमा। एंड जीरोथैलेमा किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमा होता है। ईयर लेयर के फॉर्मेशन में रिंकल्स आ जाना आई के मतलब कॉर्निया में, दैट इज व्हाट द सिम्टम्स आर। नाउ प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स कॉल द थिन गैशियस एनवेलप अराउंड द मून एज व्हाट? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफे को क्या कहते हैं? मनीष, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज जिसकी वजह से देखने में दिक्कत आती है, कॉर्निया में व्हाइट पैचेस बनने लग जाते हैं, कॉर्निया रिंकल होने लग जाता है, टीयर्स बनने रुक जाते हैं। ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ये भी ये है, बिकॉज यू कांट ब्रिंग अप द टीयर्स। Tanveer, Amrendra, Ashwajit, Rahul seems like A. A is right. Sandeep, okay, Raj. Quick. Okay, so we have a few answers going with option A, Surya Aniket, that is right. Lunar exosphere is the thin layer of gas around moon. Moon के आसपास जो एक atmosphere है उसका, it's a very thin layer, तो उसे exosphere बोला है because exosphere is very thin and merged with space. और लूनर इसलिए क्योंकि मून से रिलेटेड है। नाउ in May 2019, the International Monetary Fund (IMF) agreed to bail out how much of fund with which country? The fund of 6 billion. मई 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के फंड के साथ किस देश को जमानत देने के लिए सहमत हुआ? In May 2019, International Monetary Fund agreed to bail out which country with a fund of $6 billion? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। श्रीलंका। श्रीलंका को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, whereas Pakistan is still in that list, and the answer is Pakistan for this. पाकिस्तान को $6 बिलियन का फंड देके उसे उसकी जमानत कराई है, उसे हेल्प करी है IMF ने, और FATF ने इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है बिकॉज ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान इज स्टिल अंडर द क्वेश्चन मार्क, और उसे बेल आउट वहां से कराने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो सपोर्ट इवन फ्रॉम चाइना एज ऑफ नाउ। नाउ हर्ष चरित्र इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, द रूलर ऑफ कन्नौज। इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट बाय द नेम व्हाट? हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि किस द्वारा संस्कृत में रचित है? किसने लिखी है हर्ष चरित्र? मनीष, साजन, मानशु, कारम, ऋषभ, नीश। क्विक आंसर्स जल्दी। We are coming for answers with option C, बाना भट्ट, that is right. संस्कृत में लिखी गई है हर्षचरित्र, और ये हर्षवर्धन के एक कोर्ट पोएट थे बाना भट्ट, उन्होंने लिखी है। The Vedic civilization in India flourished along which river? या भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के साथ विकसित हुई थी? The Vedic civilization in India flourished along which river? या भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के साथ विकसित हुई थी? Ganesh, Ram, Raj, Gaurav, Kishan. Well, there are a lot of viewers but a lot of less answers. Answer करने वाले कम हैं. How come? Kilesh, Suraj.
No, okay, so we have a few answers with option C, Tapi, and a few with Narmada. The right answer is Saraswati Om. That is right, Om Karam, and all those who went with option B, Saraswati. Vedic civilization जो है वो सरस्वती रिवर के बैंक्स पे established था या वहां पे बना था. Which article of Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, caste, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो डिस्क्रिमिनेशन किस आर्टिकल के अंदर है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ. मूवी भी देखी होगी ये वाली तो. All of you must have seen the movie. So it's easy to guess now. Kiran, Ashwajit, Sandeep, Vishal, Sajan, Ganesh. Okay, ये मूवी तो सभी ने देखी भी होगी. I'm expecting. आर्टिकल 15 पवन, यस, तो आर्टिकल 15 बिल्कुल सही आंसर है. आर्टिकल 15 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड. लेफ्टिनेंट जनरल Dash took charge as the Chief of Army Staff on 31st December 2019. ये लेफ्टिनेंट जनरल किसने 31 दिसंबर 2019 को सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? Yeah, definitely he is. Ayushmann has done kind of very bold movies at times. So, who took charge as the Chief of Army Staff on 31st of December 2019? Roshan, Karam, Vishal. बहुत ही easy question है and I'm not expecting any wrong answers in this. Okay, jaldi jaldi, and the answers are going majorly for option C, Manoj Mukund Narwane. That is right. Lieutenant General Manoj Mukund Narwane वो Chief of Army Staff बने थे. He replaced Bipin Rawat क्योंकि Bipin Rawat जो है वो Chief of Defence Staff बने. So 1st of January को Bipin Rawat took over as the Chief of Defence Staff and 31st December को यानी एक दिन पहले Manoj Mukund Narwane became the Chief of Army Staff. According to United Nations World Economic Situation and Prospects Report 2019, the Indian economy is expected to expand by what % in 2020? According to United Nations World Economic Situation and Prospects Report 2019, the economy is expected to expand by what amount in 2020? ये संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का 2020 में कितना विस्तार होने की उम्मीद है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Sandeep, Sajan. So we have a few answers going with option B, 7.2%. बहुत close हैं ये options. B option majorly are going with 7.2%. The right answer is 7.1%. Indian economy का expected growth जो था 2020 के लिए वो 7.1% था. Now, due to the recession, definitely things have gone down, but the expectation was कि growth India की 7.1% तक होगी. And this is the last question of the day. आज का question यहीं पे खत्म होता है and we'll see you tomorrow with fresh set. Until then, goodbye. Take care. Have a great day ahead and keep preparing. That's all I can say. Stay safe and see you tomorrow.